is Robert Frost famous for? Can you He tell? was famous for he Poem, Hmm? was sir. famous for poetry. No, no, no. Actually, I want to ask you about the style. Hello. Okay, no matter. So now, what is the style? Okay, what is the theme of the writing of the Robert Frost? I'm talking about. Can you tell anyone? Actually, I have told you that this writer writes the on the theme of the rural life of England. Okay, what are the themes of the writing of this Robert Frost? Hello, tell me. Hello, Yes, sir. hello. Tell me. What's the theme of What, the sir? writing of the poem of Robert Frost? Can you tell? Hello, About the England, sir. about the rural life of England. Okay, and Ruler listen. life of England, yes. Okay, and these poets poems first published first published in England. Okay, before it was published in USA. Okay, and this is the only poet. Okay, in English literature who has got four-time Pulitzer Award, okay, for the collection of his poetry. Okay, and here the poem that we are reading today, this poem is not written with the purpose of motivation and inspire the reader, but this poem was written randomly and only to make fun of his friend Edward Thomas, who always gets easily confused, and he has always confusion about that which decision is right and which is wrong. Okay, he always gets confused easily. That's why this poet wrote this poem to make fun of his his friend. As I have told, what was the name of this poet? His friend. This was Edward Thomas. Okay, it's clear. Hmm? So now let me come to this poetry. The road not taken means, what does this line suggest? The road not taken means the road that was supposed to be chosen was not chosen. Okay, was not used, was supposed to be used, was not used. Okay, so this poem actually deals about the choices, okay, of the person, and it's somehow gives the hidden idea that it always comes in the life of a person when he has to choose, okay, one out of two, and he is not ready to choose or tell which is the right or which is the wrong for him. That's why he gets confused. Okay, so now two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I couldn't travel both and be one traveler. Long I stood and looked down, one as far as I could, to where each bent
in the undergrowth. Here, this poem gives us the idea. Okay, okay, okay. कुणाल, ओके. सो यहाँ पे जो है, ये जो पोयम है, यहाँ पे जो कवि है, उसकी जो है एक दुविधा भरी स्थिति के बारे में बतलाता है. जब वह एक ऐसे स्थान पे पहुंचता है, ठीक है, जहां पे दो सड़क अलग अलग जो है दिशाओं में निकली हुई थी, और यह एक जंगल से होकर जा रही थी, जो कि जंगल पूरी तरह से पीला नजर आ रहा था. और ये जंगल पीला नजर इसलिए आ रहा था क्योंकि ये जंगल जो था, जो पत्तियां पेड़ों से जो गिरी हुई थी, उन पत्तियों से ये जंगल पूरी तरह से ढका हुआ था, और ये सड़क भी इन पत्तियों से ढकी हुई थी. और यहाँ पे जो कवि है, वो बोलता है, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. और ये बोलता है, सिंस ही वॉज द सिंगल ट्रेवलर, सिंस ही वॉज द सिंगल पर्सन, क्योंकि यह अकेला व्यक्ति था. लॉन्ग आई स्टूड मीन्स ही स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, मीन्स वहां पे ये काफी देर तक खड़ा रहता है, ठीक है. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. हियर पोएट इज टेलिंग दैट कि वो उस जगह पर, जहां पे, उस पॉइंट पे जहां से सड़कें दो अलग अलग दिशाओं में निकल रही थी, वहां पे वह खड़ा होता है काफी देर तक, और वह जो है एक सड़क को जितना दूर वो देख सकता है, उतना दूर यह देखने की कोशिश करता है. क्योंकि ये जो है, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, क्योंकि यह सड़क आगे जाकर, जिस सड़क को ये देखने की कोशिश किया, यह आगे जाकर एक तरफ जो है मुड़ जा रही थी, और यह झाड़ियों में जो पेड़ पेड़ पौधे जो आगे, मतलब सड़क जब मुड़ रही थी तो वहां पे पेड़ पौधे होने के कारण वह जो है आगे जाकर सड़क जो है के आगे उसके आगे दिखलाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो पेड़ पौधों से ये आगे जो है का रास्ता जो है वह छिप जा रहा था. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग perhaps the better claim, or then took the other just as fair and having perhaps the better claim. और फिर ये क्या करता है कि दूसरे को लेता है, ठीक है, जो कि उतना ही, मतलब फेयर मतलब उतना ही अच्छा था. एंड हैविंग perhaps the better claim means, have better claim means preferable, means यह उतना ही अच्छा था, ठीक है. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, दूसरा भी सड़क उतना ही अच्छा था, ठीक है, क्योंकि यह जो है ग्रासी था, मीन्स यह जो था सड़क, यह घास से पूरी तरह से ढका हुआ था, और ये जो था, इस पे कोई नहीं गया था. Though as for that, the passing there had owned them really about the same. अगर वहां से गुजरने की जहां तक बात थी, तो वो उस पे कोई भी नहीं गुजरा था, ठीक है, और वहां पे दोनों ही समान रूप से दिखलाई पड़ रहे थे. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह दोनों ही जो सड़कें थी, जो अलग अलग दिशाओं में जा रही थी, वह समान रूप से दिखलाई पड़ रही थी. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, क्योंकि उन सड़कों से उस सुबह, परहैप्स मीन्स संभवतः, संभवतः, ओके. सुना, बिकॉज इट दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड ओन देम रियली अबाउट द सेम, क्योंकि वो दोनों ही, मतलब उस सुबह वहां से कोई नहीं गुजरा था. इन लीव्स, लीव्स मीन्स जो पत्तियां वहां पे पड़ी हुई थी सड़क पर. नो स्टेप मीन्स नो फुट स्टेप, किसी के कदमों की जो है निशान.
had trodden black, यानी had not crushed under the feet, कोई वहां से गुजरा नहीं था, और इस वजह से पतियां पतियां बिल्कुल मतलब दोनों में समान थे। Oh, I kept the first for another day, it knowing how way leads on to way. Then the poet here is telling that he decided to keep he decided to keep the first for another day. He decided to try the first for some other day. Means वह जो है, जो पहला सड़क था, उसको तय किया कि वह किसी और दिन ट्राई करेगा। ठीक है, यह जानती हुए भी, एट नोइंग मतलब डिस्पाइट हिज नॉलेज, जानने के बावजूद, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि कैसे एक रास्ते पर अगर हम चलते हैं तो वो रास्ता जो है आगे जाकर फिर और उसमें से अलग रास्ता निकल जाता है, फिर और अगर हम जाते हैं आगे तो उसमें से भी अलग अलग रास्ते निकले होते हैं। और ये पोएट यहाँ बोलता है, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। मीन्स पोएट बोल रहा है कि उसे संदेह था, वह थोड़ा सा उसे संदेह था कि क्या वह फिर वापस कभी आ पाएगा, और क्या फिर वापस कभी वो आकर, ठीक है, जो पहले सड़क को जो है, जो कि वह अगली बार ट्राई करना चाहता है, क्या उस सड़क पर फिर वापस कभी वो चल पाएगा, आकर जा पाएगा उस सड़क से। ओके, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, somewhere edges and wedges edges, hence two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by। ठीक है, here the poet is telling that he will be able, okay, to tell the result, okay, with a sigh, with a sigh. The poet is actually want to tell that his decision, whether it was good, और ये जो है सही था या फिर गलत था, उसका डिसीजन जो उसने लिया वो डिसीजन सही था या गलत था, यह जो है, इसका कहना ये है कि कहीं ना कहीं वह जो है, इसे अफसोस है कि इसने जो है दूसरे रास्ते को चूज किया, और यह जो है इसकी वजह से इसकी वजह से जो है क्या हुआ कि इसने उस सड़क को चूज किया जिस पे बहुत कम लोग गए थे, और इसकी वजह से इसकी जिंदगी में बहुत सारे अंतर आए। मीन्स यहाँ मैटर क्या है, यहाँ मैटर ये है कि जब कोई व्यक्ति जो है किसी रास्ते को या रोड का मतलब होता है डिसीजन, रोड यहाँ सिंबलाइज करता है डिसीजन को, जो व्यक्ति अपने जिंदगी में लेता है। हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब उसको दो किसी दो में से विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना होता है, और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर देखो, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल पर्सन एंड एन अनसक्सेसफुल पर्सन, इट्स ओनली द डिफरेंस it's only the difference of their decision, it's only about their decision. One who takes the right decision, okay, achieves success in his life, but achieves one who takes wrong decision, he has to suffer, he has to suffer, and he achieves bad result, okay, he's not able to get the favorable result. So it happens, so it's about the decision. So यहाँ पे ये बातें तो, अच्छा मुझे बताओ, ये पोएम में तुमको कोई दिक्कत है? हेलो, नो सर, अभी तक नहीं है सर। समझ में आया है? सर सभी को समझ में आया है? यस सर, यस सर। सिंपली एक बार और मैं बता दे रहा हूँ। देखो, ये जो कविता है,
यह दो सड़क के बारे में बात करती है, जो कि एक जो पीले कलर का जो पीले रंग का जो जंगल है, उससे होकर गुजरती है और यह दो अलग-अलग दिशाओं में जाती है। और कवि जो है खेद प्रकट करता है कि यह दोनों सड़कों पे एक साथ यात्रा नहीं कर सकता है, क्योंकि यह जो है कवि एकमात्र यात्री है, ठीक है? और इस वजह से यह उस पॉइंट पे जहाँ पे ये सड़क जो है जंगल में, जहाँ से 2 अलग-अलग दिशाओं में जा रही थी, वहाँ पे काफ़ी देर तक रुक कर इंतज़ार किया, रुकता है और दोनों मतलब सड़कों को जो है, उसमें से एक सड़क को जितना दूर तक ये देख सकता है, उसको देखने का प्रयास करता है और जो है जिस सड़क को देखने का प्रयास करता है, वो सड़क आगे जाकर जो है, वो मुड़ जा रही थी और आगे जाकर यह पेड़ों की मतलब पेड़ पौधे उगे हुए थे, उनके पीछे छिप जा रही थी, जिसकी वजह से उसके आगे यह नहीं देख सकता था, ठीक है? और इसके बाद अगर ये दूसरे की बात करता है, तो बोलता है कि वो सड़क भी उतनी ही अच्छी थी, देखने में उतनी ही अच्छी लग रही थी जितनी कि पहले। और उसका मानना है कि अगर माना जाए तो दूसरा जो था थोड़ा उसको मतलब ज़्यादा मतलब लगता था कि इस पे चलना सही होगा। क्योंकि यह जो सड़क जो थी दूसरी, जो कि कभी को लगता है कि यह जो है सड़क पे जाना उसका सही डिसीजन होगा, वह सड़क जो थी वह घास से भरी हुई थी और उस पे कोई भी नहीं गया हुआ था। वांटेड वेयर मीन्स नीड्स टू बी वॉक्ड। इस पे मतलब किसी को कोई नहीं गया था और यहाँ कवि को लगता है कि इस पे उसे जाना चाहिए। ठीक है? और दो Sir, हाँ बोलो। sir, in हाँ the बोलो। title of poem there is the road not taken means decision not taken. The decision not taken, we can call it. Okay, we can understand it. Okay, because Yes, sir. this poem has several, okay, hidden meanings. Okay, it talks about several ambiguity. कई जो है मतलब ऐसे मतलब कहो कि दुविधाओं के बारे में बात करता है जो कि हर व्यक्ति की जिंदगी में आता है। जैसे कि मान लो कि तुमको कोर्स का चॉइस करना है कि तुम एमबीबीएस की पढ़ाई करो कि आईआईटी की पढ़ाई करो, उसमें हो जाएगा। ये इस स्कूल में जाओ कि उस स्कूल में जाओ, वहां हो जाएगा। तुम यहाँ यहाँ जाओ कि वहां जाओ, इस बारे में हो जाएगा। किसान के बारे में बात करें कि इस फसल को लगाए, उस फसल को लगाए, यहाँ हो जाएगा। तो ये जो है कहीं न कहीं कॉमन जो है ना, एक आइडिया को जो कि रखता है, जहाँ पे मतलब एक कॉमन सा ये एक मतलब प्रबल होता है, जो हर व्यक्ति के सामने एक परेशानी के रूप में सामने उसके आता है। ठीक है? हेलो, इट्स क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. It's clear. Clear. It's clear now. So now, though as for that, the passing there had owned them really about the same. यदि क्या हुआ था कि अगर जहां तक इस पे चलने की बात थी, ठीक है, तो उन दोनों पे ही मतलब कहीं ना कहीं लोग गए हुए थे, ठीक है। एंड लेकिन उस सुबह, जिस सुबह ये वहां पे जब खड़ा था, तो उस सुबह यह जो सड़क जो थी दोनों दोनों ही मतलब पत्तियों से ढकी हुई थी और इस पे जो है कोई भी मतलब दोनों सड़कों से होकर उस सुबह कोई भी गुजरा नहीं था। ठीक है। कवि जो है यहाँ बोलता है कि ओ आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यानी यहाँ पे जो कवि है वो क्या करता है कि जो पहला है वह किसी और दिन के लिए ट्राई करने के लिए सोचता है। ठीक है। लेकिन वो जानता है कि वह जो सोच रहा है कि जो पहला सड़क है वो किसी और दिन जो ट्राई करेगा, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब वह एक रास्ते पर चल पड़ेगा तो फिर वो रास्ता जो है वह कभी भी उसको वापस नहीं आने देगा, क्योंकि वो रास्ता जो है आगे चलकर फिर उसमें और भी राहें उसको आगे की ओर
मिलती चली जाएंगी और जिससे उसको आगे बढ़ते चला जाना होगा और इस वजह से फिर वो वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए इस वो कभी बोलता है कि उसे थोड़ा संदेह है कि क्या वो कभी फिर वापस आ पाएगा इस जो पहले सड़क को जो आज वो नहीं ट्राई कर रहा है और वो चाहता है किसी और दिन ट्राई करने के लिए, क्या वो ऐसा कर पाएगा? ठीक है। और यहाँ पे आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, वो बोलता है कि मैं आपको जो है थोड़ा सा डीप ब्रीथ के साथ, डीप ब्रीथ टू डीप ब्रीथ दैट somehow expresses sorrow, to express sorrow। ओके। अच्छा तुम मुझे बताओ कि हम लोग डीप साई कब होता है, साई हम लोग कब करते हैं? मान लो कि एक पर्सन जो है, ठीक है, धूप में चल रहा है, ठीक है, काफी देर थोड़ा देर तक धूप में वो चला, किसी काम से गया और जब फिर कमरे में आता है जहां पे उससे पंखा चल रहा है या एसी चल रहा है और ठंडी हवा उसे मिलती है, तो वो थोड़ी राहत की सांस लेता है ना, लेता है कि नहीं लेता है? Yes, Yes, sir. sir. लेता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि साई लेने का मतलब क्या, कि वो जो है उसका जो पहले का एक्सपीरियंस रहा वो थोड़ा सा काफी बुरा एक्सपीरियंस रहा, इसलिए यहाँ पे Sir, जो है, he is इसलिए जो sir, है he यहाँ, is feeling better than हाँ हेलो, previous. He is in the mode of relaxing. हाँ तो ये जो है इसलिए कवि बोल रहा है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद साई, वो बोल रहा, कवि बोल रहा है कि मैं थोड़ा सा गहरी सांस लेते हुए बताना चाहूंगा कि सम एजेस एंड एजेस हेंस, ठीक है, कि एजेस एंड एजेस मतलब आफ्टर मेनी इयर्स, कई सालों के बाद, ठीक है, कि टू रोड्स डाइवर्ज इन वुड, दो सड़क जो कि जंगल में अलग अलग दिशाओं में जा रही थी, इसने क्या किया कि एक सड़क को यह जो है मतलब चूज किया जिससे बहुत कम लोग गए थे और इस वजह से इसकी जिंदगी में काफी बड़ा बदलाव, काफी बड़ा अंतर आया और जो अंतर आया उससे ये कवि जो है कहीं ना कहीं खुश नहीं है। इसे लगता है कि अच्छा, अगर उस इसके लिए अच्छा होता कि पहला सड़क अगर चूज करता तो शायद जो आज जो वो उसे थोड़ा सा अफसोस है, शायद उसे अफसोस नहीं करना पड़ता। ठीक है। हेलो, हेलो, Yes, क्लियर? yes, Yes, sir. sir. Yes, हम्म। Sir, it's totally अब बोलो clear. कि क्लियर है कि नहीं है, बोलो क्लियर है? yes, sir. अब थोड़ा सा मैं तुम लोग से बात करना चाहूंगा। Yes, आई sir. लाइक, एक्चुअली यू हैव टोटली मेड मी हिंदी टीचर दैट आई डोंट लाइक, ओके, एंड somehow I'm feeling a little bit uneasy with this, so okay, it doesn't matter. So now tell me now, what the rhyme scheme of this poem? Can you tell me the rhyme scheme? Do you know rhyme scheme? How do you find rhyme scheme? Hello you all, listen. Yes, Yes, sir. sir. Hmm. Yes, sir. Can you tell me what's the rhyme scheme? How can we find rhyme scheme? Do you know or don't know? Tell me yes or no. No, No, sir. You no, don't know. sir. No, sir. Listen. If the No, sir. Sir, if the any word that ends in ends with any sound, if that sound is repeated in the next sentence at the end of the next sentence, just like you can see wood, wood देख रहे हो? Can you see wood? yes, sir. क्या is this sound match with both would, does it match with both? No, sir. Hmm? No. Listen, Kunal, you have rightly written, but have you idea? So listen. तो पहले वाले को what would you put for would? We'll write A here. And since both is different sound from wood से both जो है different sound है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे? B लिख देंगे। क्या लिख देंगे? Let me write here. Okay. This is A.
or this is B. Okay. Stood. Tell me, does it match with wood sound? Yes, sir. Huh? Yes, sir. Okay. It's match. So, okay, it's matching. So, what we'll write? Since we have written for wood sound A, then here again we'll write A. Okay. Again A. It's clear? So, A, B, A. Now next. Does could match with stood or would? No, sir. Don't know. You try to, at first you speak would, could. Yes, sir, it matches. Does it match? Yeah, Sir, it's match. It's matching. Okay. So that's why I it's think you, again A. sir, I think you are saying undergrowth. Hmm? And now tell me. And now tell me. Undergrowth match with which? Would, stood, could, both. Tell me. Both. 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 So what will I write here? B. What will I write here? Tell me. What? B, sir. B. B. Okay. So B again. B again. So what the rhyme scheme of this poem? A B A A B. A B A B. So this is the rhyme scheme of this poem. It's clear? Hmm? Yes, sir. It's Yes. clear. And how much time we have? So listen now. So if you have any word problem, actually, I would like to tell you uh, the poetic devices which have been used in this poem. I would like to talk on this topic tomorrow. Okay. So for today, you tell me if you have any issue regarding understanding this poem. You can tell. If you find any phrase, any word that is difficult for you, that you are not able to understand, then you can ask to me. Sir, size. SIGH. SIGH. Here right, deep breath, taking a deep breath, What, sir? taking a deep breath, Sir, to, Trodden. to take a deep breath. Okay. Trodden. Trodden means Okay, sir. crushed under the feet, crushed under the feet, पैरों से कुचला गया. Clear? Hmm? Yes, sir. Any next word? If you think that that's difficult for you, can you tell? Hmm? Hello? Can you tell me? Yes, sir. Yes, If sir. you if you can Worn ask, means, sir. you can ask any W O. line. Own. Sir, Hmm? WORN. WORN. Own means Yes, sir. that used, What, sir? used. Okay, sir. Okay. Just like if I use any shirt for a long time, then it will worn. Okay, means somehow it will become old. So that's the sense. It's old. Okay, और घिसना भी कर सकते हैं हम लोग घिसना. ओके. Yes, sir. ओके. और कुछ. Listen. Now let me tell you.